Hello everyone, let us start first chapter of class +2 solution. सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले मिक्सचर की बात कर लेते हैं. मिक्सचर फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस इन एनी रेशो इज नोन एज मिक्सचर. टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस in any ratio is known as mixture. Mixture is of two type: homogeneous, heterogeneous. Homogeneous mixture. In homogeneous mixture, composition is uniform. For example, if we add sugar into water, take water into a beaker and add small amount of sugar into it. Sugar completely dissolve into water and make a homogeneous solution. There will be no separate boundary between sugar particle and water molecules. So in homogeneous mixture there will be no separable boundaries. Homogeneous mixture known as solutions. But in heterogeneous mixture there will be no separate boundaries between solute and solvent. For example, if we add oil into water, then there will be separate boundary between oil and water. It contains non-uniform composition. In heterogeneous mixture, particle of solute either seen by naked eye or with the help of ultra microscope. So it is of two type: colloid or suspension. If we add sand into water, and particle of sand easily visible with the naked eye, so it is a suspended solution. But in milk, fat particles cannot seen with the naked eye, but with the help of ultra microscope, passing light through the solution, particles easily visible. So it is a colloidal solution. In this chapter, we study about homogeneous mixture, means solution. So, let us start our chapter solution. तो solution क्या है? Homogeneous mixture. Solution is a homogeneous mixture of two or more pure, non-reacting substances whose composition can be varied within certain limit. Composition means matra, मतलब amount of solute and solvent can be varied within certain limit. या in other words we can say that concentration of solute can be varied within a limit. इस बात को हम इस एग्जांपल से समझेंगे. एक बीकर में अगर हम पानी लें और उसमें कुछ पार्टिकल शुगर के ऐड करें तो शुगर पार्टिकल्स डिसॉल्व हो जाएंगे इजिली. कुछ और अमाउंट ऑफ शुगर ऐड करें तो वो भी डिसॉल्व हो जाएंगे. अगर हम कुछ और अमाउंट ऑफ शुगर ऐड करें और वो डिसॉल्व ना हो तो इट मीन्स अब ये सॉल्यूशन नहीं रहा. ये क्या बन गया? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन. तो इट मीन्स कंसेंट्रेशन जो होती है सोल्यूट की वो किस एक लिमिट में ही ऐड की जाएगी. कैन बी वेरिड विद इन अ सर्टेन लिमिट. टू कंपोनेंट्स सोल्यूट एंड सोलवेंट टू मेक अ सोल्यूशन. सो नाउ व्हाट इज सोल्यूट? सोल्यूट और सोलवेंट बोथ आर कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन. सोल्यूट क्या है? कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच गेट डिसॉल्व इन अनदर कंपोनेंट. या फिर हम ये कह सकते हैं मे और मे नॉट रिटेन इट्स फिजिकल स्टेट. अपनी फिजिकल स्टेट को रिटेन भी रख सकता है और नहीं भी रख सकता. जैसे शुगर क्या है? सॉलिड. और वाटर क्या है? सोलवेंट, लिक्विड. व्हेन वी ऐड शुगर इनटू वाटर देन ओनली वन कंपोजिशन लिक्विड स्टेट विल बी रीच्ड. इट मीन्स शुगर change its physical state solid to liquid, may not retain its physical state. Solvent भी component है solution का. Component of solution in which other component can be dissolved or retain its physical state. Solvent always retain its physical state but solute may or may not retain its physical state. इसके लिए हम एक एग्जाम्पल जैसे पहले हमने अभी पढ़ा है. शुगर सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, बट शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाएगी. सॉल्यूट चेंज इट्स फिजिकल स्टेट, चेंज इनटू लिक्विड स्टेट. बट इफ वी टेक अनदर एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन, इफ वी ऐड अल्कोहल इनटू वाटर, तो अल्कोहल सॉल्यूट लिक्विड है,
नॉट चेंज इट्स फिजिकल स्टेट, सोल्यूट रिटेन इट्स फिजिकल स्टेट। कई बार हम ऐसे कहते हैं कि जो कम अमाउंट में होता है वो सोल्यूट होता है और जो लार्ज अमाउंट में होता है वो सोलवेंट होता है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे। 98%, अगर हम कहें 98% H2SO4 बाय मास, तो इट मीन्स 98 ग्राम H2SO4 और 2 ग्राम वाटर। H2SO4 हमारा यहाँ पे क्या है, सोल्यूट, और वाटर क्या है, सोलवेंट। बट अगर हम अमाउंट देखें तो सोल्यूट ज्यादा है और सोलवेंट कम है। तो ऐसा नहीं है कि हर बार जो स्मॉल अमाउंट में होगा वो सोल्यूट होगा और जो लार्ज अमाउंट में होगा वो सोलवेंट होगा। हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है ये। इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन टॉपिक में। नेक्स्ट वी स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट वेज। फर्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोलवेंट। टू टाइप से होगा ऑन द बेसिस ऑफ सोलवेंट, एक्वा सॉल्यूशन, नॉन एक्वा सॉल्यूशन। इफ वी मेक सॉल्यूशन और solvent is water, then solution is known as aqua solution. But if solvent other than water, for example solvent as a benzene, alcohol, acetone, ether, then solution is known as non-aqua solution. Next classification है classification on the basis of number of components in a solution. If two components are added to make a solution, then solution is binary solution. If three components are used, then solution is tertiary solution. Or if four components are used, then solution is quaternary solution. For example, sugar solution, sugar plus water, two component, solution is binary solution. If we add salt into this, तो थ्री कंपोनेंट हो गए, शुगर प्लस वाटर प्लस सोल्ट, तो टर्शरी सॉल्यूशन। और इफ वी एड एनी अदर फोर कंपोनेंट तो क्वाटनरी सॉल्यूशन। नेक्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। हम यहां पे बात करें, अगर हम सोलवेंट को लिक्विड सॉलिड लें तो सॉलिड सॉल्यूशन, अगर सोलवेंट लिक्विड होगा तो लिक्विड सॉल्यूशन, और अगर सोलवेंट गैस होगा तो गैसियस सॉल्यूशन। फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूट के टाइप पे हम अगर इनको क्लासिफाई करें तो कुछ इस टाइप से हमारी ये टेबल रहेगी। सोल्यूट सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। सोलवेंट अगर लिक्विड है, इस तरह से लिक्विड सॉल्यूशन में सोलवेंट लिक्विड रहेगा और सोल्यूट सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैसियस सॉल्यूशन में सोलवेंट गैस रहेगा और सोल्यूट सॉलिड, लिक्विड और गैस। इस तरह से हमारे 9 टाइप्स हो जाएंगे सॉल्यूशन के। फर्स्ट सॉल्यूशन सॉलिड इन सॉलिड, एग्जांपल्स इसका पढ़ेंगे जैसे एलॉयज। फॉर मेकिंग एलॉयज मेटल्स का कॉम्बिनेशन होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं एलॉयज। कॉपर मिक्स्ड विद गोल्ड, कॉपर मिक्स्ड विद जिंक या एनी अदर एलॉय। अनदर लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड जैसे अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम या एनी अदर मेटल। सोडियम सॉलिड है और मरकरी लिक्विड है, तो मरकरी यहाँ पे सोलवेंट, मरकरी यहाँ पे सोल्यूट होगा, तो अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, इट आल्सो रिप्रेजेंटेड एज सोडियम अमलगम। नेक्स्ट गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड मीन्स जस्ट adsorption of hydrogen gas on surface of metals या any other gas, nitrogen gas on the surface of iron, metals या any other metal. Adsorption, gases का adsorption on the surface of metal. That phenomena is also known as occlusion. Occlusion, क्लियर है सबको? नेक्स्ट है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट है सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड जैसे हमने अभी पहले पढ़े हैं एग्जांपल, सभी मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो होते हैं सॉलिड इन लिक्विड, शुगर इन वाटर, सोल्ट इन वाटर या एनी अदर सॉलिड कंपोनेंट विच कंप्लीटली डिसॉल्व इन टू वाटर मेक लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड इन लिक्विड मिक्स जैसे पहले भी हमने पढ़ा अल्कोहल डिसॉल्व इन वाटर या एनी अदर लिक्विड डिसॉल्व इन वाटर। नेक्स्ट गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड ऑक्सीजन इन वाटर, ऑक्सीजन है वाटर में, इक्वेटिक स्पीसीज लीव करती हैं वाटर में, ऑक्सीजन इन वाटर। एरेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है अंडर हाई प्रेशर, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आगे हमारा आएगा ये डिटेल में। एरेटेड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स।
नेक्स्ट गैसियस सॉल्यूशन, सॉलिड इन गैस, सॉलिड जैसे सॉलिड आयोडीन वेपर्स इन गैस, कैम्फर इन नाइट्रोजन। नेक्स्ट लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस जैसे क्लोरोफॉर्म लिक्विड मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस, या फिर ह्यूमिडिटी विद इन एयर। और नेक्स्ट गैस इन गैस, एयर, एयर नंबर ऑफ गैसेज आर मिक्स्ड इन एयर, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन और एनी अदर गैसेज। तो क्लियर है ये सब बच्चों को। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। प्लीज स्टूडेंट्स, वीडियो देखने से पहले आप सभी नोटबुक और पेन अपने पास रखिए, ताकि जो भी पॉइंट्स मैं आपको समझा रही हूं वो साथ साथ आप लिखते रहिए, तभी आप वीडियो कंप्लीट होने के बाद इस चैप्टर को टॉपिक को रिवाइज कर सकेंगे। सो आवर टॉपिक इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज कंसंट्रेशन? Let us see this example. We have 3 containers of different sizes A, B, C. In all these beakers, we add equal amount of sugar. 2 spoons sugar in each beaker. Question arises for you. In which beaker solution is more sweet? आप सभी कहेंगे in solution A, beaker A. But my answer is in beaker C. Solution is more sweet, because in beaker C we take 10 ml of water, in B 20 ml of water, or in A 30 ml of water. Less is the amount of solvent, more solution is sweet. So clear है? वन मोर क्वेश्चन। अब इन बीकर्स को कंप्लीटली फिल कर देते हैं वाटर से। इन बीकर्स को अगर हम वाटर से कंप्लीटली फिल कर दें और 2 स्पून शुगर ऐड करें इन ईच बीकर्स, सेम क्वेश्चन अराइजेस फॉर यू, विच सॉल्यूशन इज मोर स्वीट? अब भी आप सबका आंसर होगा ए, बट अब भी रॉन्ग है। आपका आंसर रहेगा इसमें भी सी, बिकॉज इन बीकर सी 2 स्पून शुगर जो हमने ऐड किया, इसके लिए जो हमने स्पून लिया है वो थोड़े से बड़े साइज की लिए। इसमें जिस स्पून से हमने शुगर ऐड किया है वो इससे थोड़ी सी छोटे साइज की लिए, और इसमें बिल्कुल छोटी सी स्पून को यूज किया है। तो जिसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ शुगर ऐड होगी वो सॉल्यूशन जो है वो मोर स्वीट होगा। तो दोनों ही केस में आपका आंसर क्यों गलत हुआ? एक केस में हमें ये नहीं पता था कि सॉल्वेंट कितना यूज किया है, और दूसरे केस में हमें ये नहीं पता था कि सोल्यूट कितना यूज किया है। तो अगर हमें एग्जैक्ट पता लगाना है कि कितनी शुगर डालने से कोई सॉल्यूशन कितना मीठा होगा या कम मीठा होगा, या कितना सोल्ट डालने से कोई सॉल्यूशन कितना सोल्टी होगा, लेस होगा या मोर, तो इसी चीज को हम केमिस्ट्री की टर्म में कहेंगे कंसंट्रेशन। क्लियर है सबको? तो कंसंट्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसोल्व इन known amount of solvent, or amount of solute dissolve in known amount of solution. If this is 10 gram and this is 100 gram, if we know the amount of 2 component, solute, solution, we easily calculate the third one. 100 minus 10, 90 gram. So how much amount of solute is added in a given amount of solvent is the concentration. So now next topic is unit of concentration. Concentration can be measured in different units. Now discuss first unit, percentage. Percentage, it can be expressed as percentage by mass या either percentage by volume. Solute, solvent make a solution. इसके लिए अगर हम ले सपोज वी हैव 20% सॉल्यूशन बाय मास, 20% सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम, 20%. All these 3 solutions are 20%. 20% means 20 solute, 100 solution. 20%, 20 solute, 100 solution. यहां पर भी 20% है तो 20 solute, 100 solution. इस बात का मतलब क्या है? बाय मास, बाय वॉल्यूम फॉर सॉलिड सोल्यूट. बाय मास मीन्स
solute measured in gram as well as solution measured in gram, both measured in gram. So percentage by mass also write as W by W. 20% by volume. For liquid solute, we use 20 ml solute in 100 ml of solution. V by V. It can also expressed as V by V. Third one, 20% by volume. For solid solute, अगर solute हमारा solid है तो we use solute in gram in 100 ml of solution. क्लियर है? अगर solute हमारा solid होगा तो हम solute को मेजर करेंगे ग्राम में, तो ये हमारी बन जाएगी मेजरमेंट यूनिट W by V. तो जो परसेंटेज बाय वॉल्यूम होती है वो टू टाइप से एक्सप्रेस्ड होती है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम फॉर लिक्विड सोल्यूट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम फॉर सॉलिड सोल्यूट. अब इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं एक बार. परसेंटेज बाय मास क्या होगा? अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. परसेंटेज बाय वॉल्यूम फॉर लिक्विड सोल्यूट के लिए क्या होगा? अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ml प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. दिस वन. फॉर सॉलिड सोल्यूट क्या होगा? अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. और फॉर्मूला अगर हम इनके फॉर्मूले से अगर हम इन्हें देखें तो कैसे होएगा? परसेंटेज बाय मास किसके इक्वल होएगा? देखो, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, परसेंटेज 100. फॉर लिक्विड सोल्यूट के लिए परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml डिवाइड टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100. फॉर सॉलिड सोल्यूट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100. क्लियर है सभी को? सभी बच्चों को मैं फिर से कहूंगी दोबारा, जो भी ये फॉर्मूले यहाँ पर समझाए जा रहे हैं प्लीज आप इसे नोट डाउन कर लीजिए. ये आपके लिए काफी बेनिफिट रहेगा. इस वीडियो के बाद आप इसे इजीली अपने नोट से रिवाइज कर सकेंगे. अच्छा, चलो अब यहाँ देखते हैं. यहाँ पर हमें सोल्यूट पता लग गया, सोल्यूशन पता लग गया. कैन वी फाइंड दिस वन? इन दिस कैन वी फाइंड दिस वन? In this case, we find the amount of solvent if we know the density. In third case, solvent की अमाउंट पता करने के लिए हमें यहाँ पे डेंसिटी का पता होना जरूरी है. फर्स्ट केस में देख लेते हैं पहले. यहाँ पे solvent कितना होगा? 100 माइनस 20, 80 ग्राम. 100 ml माइनस 20 ml, 80 ml. थर्ड केस में देखिए, if we know the density then we calculate the amount of solvent. As you know, density is equal to mass upon volume. Mass of solution is equal to volume into density. Volume 100 ml, 100 into density. Mass of solution क्या हो गया? 100 into density. तो amount of solvent के लिए हम क्या करेंगे? 100 into density. ये हो गया mass of solution minus mass of solute. Clear है सभी को? These solutions, these can be measured if our solution is ideal. We will discuss it later. So first, आपको clear है first unit? Percentage. So next unit is for measuring concentration is strength. जो फर्स्ट केस है इसमें हम कई बार मास परसेंटेज यूज कर रहे हैं, वॉल्यूम परसेंटेज, सॉलिड सोल्यूट के लिए हम अलग यूज कर रहे हैं, लिक्विड सोल्यूट के लिए अलग. तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए नेक्स्ट यूनिट है स्ट्रेंथ. इसमें हम सोल्यूट को किस में लेंगे? ग्राम में. सोल्यूट सॉलिड हो या लिक्विड, किस में मेजर किया जाएगा? ग्राम में. और इसमें हमें अगर सॉल्यूशन बनाना है ओनली 1 लीटर सॉल्यूशन के लिए हम बनाएंगे तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. और फॉर्मूले से हम इसको कैसे बताएंगे? स्ट्रेंथ इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम upon volume of solution in liter. Solute, solvent. For solute, we use either 2 or B. For solvent, we use 1 or A. तो solute के लिए अगर हम 2 या B यूज करेंगे तो क्या हो जाएगी स्ट्रेंथ? वेट ऑफ solute डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ solution in liter. If in any numerical volume used in ml, तो वो लीटर में चेंज करना है तो उसे 1000 से डिवाइड कर देंगे.
तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा अब यहाँ पर, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml डिवाइड बाय 1000 ऊपर आ जाएगा ये। और इसको अगर हम ऐसे लिखें 100 इंटू 10 तो उससे कोई चेंज नहीं होगा। इस यूनिट को देखिए आप ध्यान से, जो सर्कल है ये ब्लैक से, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 100, ये अपना क्या होता है, ये देखो ये ऊपर देखिए आप, परसेंटेज बाय वॉल्यूम होता है ये फॉर सॉलिड सोल्यूट। तो यहां से अगर इसको हम ये लिखें परसेंटेज बाय वॉल्यूम फॉर सॉलिड सोल्यूट, तो स्ट्रेंथ का ये फॉर्मूला बन जाएगा कि स्ट्रेंथ इज इक्वल टू परसेंटेज बाय वॉल्यूम फॉर सॉलिड सोल्यूट इंटू 10। अगर हमें स्ट्रेंथ का पता है तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हमें परसेंटेज बाय वॉल्यूम पता है तो हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं स्ट्रेंथ। तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम फॉर सॉलिड सोल्यूट इक्वल स्ट्रेंथ डिवाइड विद 10। ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आईआईटी, जेई, पीएमटी के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आवर नेक्स्ट यूनिट इज मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी। जैसे कि आपने +1 क्लासेस में पहले ये यूनिट्स पढ़ी हुई हैं, बट फिर भी उन्हें थोड़ा सा आज रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर से। उन यूनिट्स को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना चाहूंगी आपको, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। आप सभी ध्यान से देखिए, आप इसे समझिए ध्यान से। नंबर ऑफ मोल्स, व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बाय 4 मेथड्स। नंबर ऑफ मोल्स, अगर कोई एटम है तो गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ एनी एटम इन ग्राम मेजर्ड एज ग्राम एटॉमिक मास। अपने +1 क्लास में सीखा हुआ है निकालना, मोलिक्यूल का मोलिकुलर मास, एटम का एटॉमिक मास। जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो उसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। और अगर कोई मोलिक्यूल है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम मोलिकुलर मास। अगर कोई नंबर ऑफ एंटिटीज है, सपोज नंबर ऑफ आयंस हैं या कोई एनी अदर एटम्स, एनी अदर एंटिटीज आयंस, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? नंबर ऑफ आयंस डिवाइड बाय अवोगाड्रोस नंबर। स्पेशली इन केस ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर इन एट STP डिवाइड बाय 22.4 लीटर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर STP। क्लियर है? नेक्स्ट है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को करने से पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे एन फैक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ये एन फैक्टर। वैसे आपने +1 में करा हुआ है, आप वहां से बुक की हेल्प से आप उसको रीड भी कर सकते हैं, बट फिर भी आज मैं थोड़ा सा इसके बारे में फिर से आपको एक बार रिवाइज कराएंगे। एन फैक्टर, तो ये एन फैक्टर देखिए। एन फैक्टर फर्स्ट फॉर एसिड, फॉर एसिड एन फैक्टर इज इक्वल टू बेसिसिटी। बेसिसिटी जैसे कि HCl एसिड है प्लस NaOH। NaOH क्या होता है? मोनो एसिडिक बेस। एसिड कितने मोनो एसिडिक बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, वो किसी एसिड की क्या होता है? बेसिसिटी। जैसे HCl 1 मोनो एसिडिक बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो एन फैक्टर इसका क्या हो गया? 1। H2SO4 कितने मोनो एसिडिक बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है? 2, तो एन फैक्टर हो गया 2। H3PO4 कितने मोनो एसिडिक बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है? 3, तो एन फैक्टर हो गया 3। तो एसिड के लिए एन फैक्टर क्या होता है? बेसिसिटी, नंबर ऑफ H+ आयन डिस्प्लेस्ड बाय एसिड। फॉर बेस सेकंड, एन फैक्टर इज इक्वल टू एसिडिटी। सपोज NaOH प्लस HCl। HCl मोनोबेसिक एसिड है, बेस कितने मोनोबेसिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है, वो किसी बेस की क्या होती है? एसिडिटी, इक्वल टू एन फैक्टर। NaOH का एन फैक्टर हो गया 1। स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड 2 मोनोबेसिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है इस रिएक्शन में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, तो एन फैक्टर इसका कितना हो गया? 2। अगर हमारे पास एसिड और बेस का तो हमने पढ़ लिया, अगर कोई आयन है तो एन फैक्टर किसके इक्वल होगा? जितना उसके ऊपर चार्ज हो। जैसे Na+1 है तो एन फैक्टर हो गया 1, मैग्नीशियम 2+ है तो 2, सल्फेट 2 नेगेटिव है तो 2, एल्यूमिनियम आयन 3+ है तो 3। फॉर एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है अगर, तो उसके लिए एन फैक्टर होता है इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन या इधर वैलेंसी। तो जैसे मैग्नीशियम एन फैक्टर 1, मैग्नीशियम 2, सोडियम के लिए 1, मैग्नीशियम 2, एल्यूमिनियम 3। क्लियर है यहां तक सभी को? नेक्स्ट देखिए फॉर सोल्ट, कोई सोल्ट है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट। इसके लिए एन फैक्टर होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज।
यहाँ पर कितना है N2, यहाँ पर टोटल पॉजिटिव चार्ज N1, यहाँ पे कितना है टोटल पॉजिटिव चार्ज 3, तो N3। नेक्स्ट, अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है, ये देखिए स्पेशली इस केस को देखिए आप, एन फैक्टर किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। अब जैसे अगर हम ये लें एग्जांपल, इन एसिडिक मीडियम KMnO4 कन्वर्टेड इनटू MnSO4, इसमें आप ये देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की कितनी है +7 और इस यहाँ पर मैग्नीज की कितनी है +2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कितने हैं 5, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए 5, तो एन फैक्टर कितना हो गया 5। एसिडिक मीडियम में KMnO4 का एन फैक्टर होगा 5। इन न्यूट्रल मीडियम KMnO4 कन्वर्टेड इनटू MnO2, हियर +7 से चेंज हुए ऑक्सीडेशन स्टेट +4, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है 3, तो न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 का एन फैक्टर हो गया 3। इन अल्केलाइन मीडियम KMnO4 कन्वर्टेड इनटू K2MnO4, ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से चेंज होगी +6 में, तो यहाँ पे ओनली 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, तो यहाँ पे एन फैक्टर हो गया बेसिक मीडियम में 1 ओनली। तो क्लियर है यहाँ पर। अब जैसे इस तरह से अब समझ आ गया सभी को बेटा एन फैक्टर का। जैसे अब आपसे अब हमें यह सीखना है पहले निकालना, हमें सबको मोलिकुलर मास निकालना आता है, +1 क्लास में हमने सीखा है ये। ग्राम इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास मेजर्ड इन ग्राम कैसे निकाला जाता है, ग्राम मोलिकुलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। एसिड के लिए हम बेसिसिटी का यूज करेंगे, बेस के लिए एसिडिटी, और फर्दर जो अदर आयंस है, एलिमेंट्स है, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है जो आपको सिखाया उससे हम एन फैक्टर निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा अगर हम मोलिकुलर मास को एन फैक्टर से डिवाइड करें। तो ये क्वेश्चन एक सोल्व कर लेते हैं। What will be the gram equivalent weight of KMnO4 in acidic medium? बताइए कितना होगा। एसिडिक मीडियम में KMnO4 का ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ग्राम मोलिकुलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, तो ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम इक्विवेलेंट मास KMnO4 का कितना होगा, ग्राम ये मोलिकुलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर एसिडिक मीडियम के लिए KMnO4 का कितना है, अभी आपको कराया है, बताइए सभी 5। मोलिकुलर वेट कितना होता है KMnO4 का 158 डिवाइड बाय 5, तो ग्राम इक्विवेलेंट मास KMnO4 का कितना हो गया 158 डिवाइड बाय 5। इसको फिर सोल्व कर ले। और अब हम अपने टॉपिक पे आएंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसके लिए हम इक्विवेलेंट मास हमने सीख ही लिया है निकालना, तो किसके इक्वल होगा, गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला था, मोलिकुलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, गिवन मास W, ग्राम इक्विवेलेंट वेट की जगह हम रखेंगे ग्राम मोलिकुलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, एन फैक्टर मल्टीप्लाई गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम मोलिकुलर मास। क्लियर है बेटा सभी को। यहाँ पे हमने ग्राम इक्विवेलेंट वेट का ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया है, ग्राम मोलिकुलर मास डिवाइड एन फैक्टर ऊपर चला गया। अब अगर हम यहाँ पे ये इसको देखें, गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम मोलिकुलर मास, तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ने पहले पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, तो ये क्या हो गया नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ से डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, एन फैक्टर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है सभी को। तो देखिए अब ये क्वेश्चन करेंगे एक, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। तो गिवन वेट कितना है 9.8 ग्राम, सॉल्यूशन अपना क्या है H2SO4, तो इसका ग्राम मोलिकुलर मास निकाल लीजिए H2SO4 का 2 प्लस सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन का 16, 4 का 64, तो टोटल ग्राम मोलिकुलर मास कितना हो गया H2SO4 का 98 ग्राम। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला एन फैक्टर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स। एन फैक्टर कितना होगा H2SO4 के लिए, एसिड है बेसिसिटी के इक्वल होगा, कितना होगा 2, एन फैक्टर हो गया 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, W बाय GMM, गिवन वेट 9.8
डिवाइड बाय मोलिकुलर मास 98। यहां से हम इसको सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 0.2 ग्राम इक्विवेलेंस। तो क्लियर है बेटा, ये सब बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये आप इजीली कर पाएंगे इसको। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस सीधा निकल गया यहाँ से, एन फैक्टर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स। एन फैक्टर H2SO4 के लिए कितना हो गया 2, और नंबर ऑफ मोल्स सोल्व किए 9.8 डिवाइड बाई 98.1 आ गया, तो यहाँ से सीधा सोल्व हो गया। ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में, और ये हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप खुद से सोल्व करेंगे, नोट कर लीजिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस इन 4.9 ग्राम ऑफ H3PO4। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में, और इसको बाद में आप कर लेना इसको सोल्व। ठीक है, और अब नेक्स्ट हम पढ़े, ये सारा आपको मैंने +1 का समझाया, थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है। अब हम अपनी मेन उस पे आएंगे, जो नेक्स्ट यूनिट है। हमने 2 डिस्कस कर ली थी, परसेंटेज, स्ट्रेंथ। अब हम नेक्स्ट जो हमारी यूनिट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फर्दर 3 यूनिट्स जो है हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे अभी। मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, ये भी वैसे आपने +1 क्लास में पढ़ी हुई है, फिर भी एक बार दोबारा से हम इनको मैं आपको समझा देती हूँ, क्लियर कर देते हैं एक बार दोबारा। देखो, हमने 2 चीजें पढ़ी हैं अभी, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे मोलैलिटी में भी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और नॉर्मेलिटी में हम क्या यूज करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। अगर इसको हम डिवाइड कर दे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये किसके इक्वल होगा, मोलैरिटी, डिनोटेड बाय कैपिटल M। सिमिलरली अगर हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस को डिवाइड कर दें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये भी किसके इक्वल होगा, नॉर्मेलिटी। बट इन दिस केस वी डिवाइडेड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विद वेट ऑफ सोलवेंट इन kg। यहाँ पे हम वॉल्यूम की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे वेट ऑफ सोलवेंट इन kg, डिनोटेड बाय स्मॉल m। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और इसमें हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर kg ऑफ सोलवेंट, डिजोल्व पर kg ऑफ सोलवेंट। और अगर हम इसको फॉर्मूले से करेंगे, देखो मोलैरिटी डिनोटेड बाय कैपिटल M, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के लिए वी यूज 2 और B, तो नंबर ऑफ मोल्स N ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है, अगर मिलीलीटर में है तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 1000 ऊपर चला जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स हमने अभी निकालना सीखा ही है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, दिस इज मोलैरिटी। सिमिलरली यहां पर अगर हम आए तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस कैसे निकालते हैं, गिवन वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, तो सोल्यूट की बात है यहाँ पे भी, तो वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। इसमें आप देखिए एक बार, इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते थे, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय n फैक्टर। अगर हम इसकी जगह इक्विवेलेंट वेट की जगह ही रखते हैं मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय n फैक्टर, n फैक्टर ऊपर चला जाएगा, n फैक्टर को सेपरेट करके ये फॉर्मूला क्या बनेगा, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। इस टर्म को देखिए, ये टर्म क्या है, सेम है बिल्कुल, ये मोलैरिटी है, तो इसकी जगह आप अगर मोलैरिटी लिखे तो रिलेशन आ जाएगा नॉर्मेलिटी विद मोलैरिटी, क्या होगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर मल्टीप्लाई मोलैरिटी। और इसमें बस एक छोटा सा चेंज है कि जहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है वहां पे क्या आएगा, वेट ऑफ सोलवेंट इन kg, यहाँ पे हम गिवन वेट ऑफ सोल्यूट रखेंगे और मोलिकुलर वेट भी सोल्यूट का रखेंगे। तो ये सब क्लियर है आपको। इसमें एक बात और बताना चाहेंगे कि जो मोलैरिटी होती है वो चेंज होती है विद टेम्परेचर। आज हमने कोई सॉल्यूशन बनाया है, सपोज 0.2 नॉर्मल बनाया, m/10 मोलर बनाया है, अगर कल टेम्परेचर थोड़ा बहुत चेंज होता है तो फिर उससे जो है हमारी वॉल्यूम चेंज होएगी, तो सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हो जाएगी। तो मोलैरिटी चेंजेस विद टेम्परेचर, नॉर्मेलिटी ऑल्सो चेंजेस विद टेम्परेचर, बट मोलैलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट होती है। क्लियर है बेटा सबको, ये वैसे आप +1 में सारा कर चुके हैं, फिर भी आप आज मैंने आपको जो समझाया वो आपको सबको क्लियर हो गया होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको करने हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए प्लीज।
ये खुद से सोल्व करने हैं आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, +2 की एनसीईआरटी के सोल्व क्वेश्चन है ये, और एक अनसोल्व इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये सोल्व क्वेश्चन है, आप इसे देखिए करके। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करिए, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड CH3COH इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। ये भी सोल्व क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, तो आप इसे इजीली कर लेंगे। और लास्ट क्वेश्चन आपका ये है रहेगा, आप इसे करिएगा सोल्व। कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ KI सॉल्यूशन इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास, W/W परसेंटेज है, ये पहले कराया था, अभी आज ही वीडियो में कराया, आप इसे करिए सोल्व। एक्वस KI इज 1.202 ग्राम पर ml। इजिली सोल्व कर लेंगे अगर आपने इस वीडियो को, आज मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से समझा है और सुना है और साथ साथ नोट किया है, तो आप इन तीनों क्वेश्चंस को इजिली सोल्व कर लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।